लेक्चर नंबर 32 में आपका वेलकम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टॉपिक प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मैक्सिमा, मिनिमा एंड Lagrange's method of multipliers। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने मैक्सिमम, मिनिमा इन मल्टी वेरिएबल्स में पढ़ा था। अब जो दोनों पिछले लेक्चर्स पढ़े हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम्स और हम इसमें लेक्चर में करा रहे हैं, जो हमने लेक्चर नंबर 30 और 31 में किए थे। तो उन्हीं से रिलेटेड यहाँ पर हम प्रॉब्लम्स करेंगे, मैक्सिमम, मिनिमा से और लैग्रेंजेस मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स से। तो हम पहला एग्जांपल ले रहे हैं। गिवन x प्लस y प्लस z इक्वल टू a, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x की पावर m, y की पावर n, z की पावर p। मतलब ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू अंडर द कंडीशन ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू a। इसके साथ मतलब आपके x, y, z जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो इस कंडीशन से कनेक्टेड है, तो हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हम लैग्रेंजेस मेथड का यूज करते हैं। तो लेट फंक्शन ऑफ x, y, z इक्वल टू x की पावर m, y की पावर n, z की पावर p। दिस इज 1। नाउ लेट अस सपोज सेकंड, phi x y z equal to x plus y plus z minus a equal to 0. This is the second. Now to find the stationary value, we constitute say auxiliary function. So f x y z equal to f x y z plus lambda phi x y z. So this becomes to x to the power m, y to the power n, z to the power p plus lambda x plus y plus z minus a. This is third. For stationary values, del f over del x equal to 0, del f over del y equal to 0, del f over del z equal to 0. So this becomes to del f over del x, ये होगा आपका del f over del x प्लस lambda del phi over del x equal to 0, del f over del y प्लस lambda del phi over del y equal to 0 and del f over del z प्लस lambda del phi over del z equal to 0। अब ये हम इससे थर्ड से निकालेंगे। तो दिस बिकम्स टू del f over del x। तो del f over del x, तो जब हम x के रेस्पेक्ट करेंगे पार्शियली तो y और z कांस्टेंट रहेंगे। तो ये हो गया, दिस इंप्लाइज m x की पावर m माइनस 1, y की पावर n, z की पावर p प्लस लैम्डा, और यहां से आएगा आपका लैम्डा इक्वल टू 0। सिमिलरली जब m y के रेस्पेक्ट करेंगे तो n x की पावर m, x और z कांस्टेंट रहेंगे, y की पावर n माइनस 1, z की पावर p प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, और m p x की पावर m, y की पावर n, z की पावर p माइनस 1 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। सो दिस इज
fourth. From fourth, so this value becomes to minus lambda, this value becomes to minus lambda, and this value becomes to minus lambda from fourth. So minus lambda equal to m x की पावर m minus 1 y की पावर n z की पावर p इक्वल टू n x की पावर m y की पावर n minus 1 z की पावर p इक्वल टू p x की पावर m y की पावर n z की पावर p minus 1. So now this implies as m x की पावर m minus 1 y की पावर n z की पावर p इक्वल टू n x की पावर m y की पावर n minus 1 z की पावर p becomes to p x की पावर m y की पावर n z की पावर p minus 1. Now divided this value by x की पावर m minus x की पावर m y की पावर n z की पावर p. This is also x की पावर m y की पावर n z की पावर p, and this is also x की पावर m y की पावर n z की पावर p. So now this becomes to ये कैंसिल और x की पावर m से ये गया तो x की पावर माइनस 1 होता है, तो नीचे m अपॉन x, here n अपॉन y इक्वल टू p अपॉन z. We are using here componendo or dividendo, so this becomes to m plus n plus p upon x plus y plus z, or this becomes to m plus n plus p upon this becomes to x plus y plus z equal to a, given in the condition as x plus y plus z equal to a. So this implies as x equal to m a upon m plus n plus p, y equal to n a upon m plus n plus p, और z equal to p a upon m plus n plus p. So we find these values x, y, z and putting these values in the function for maximum value. So putting the value of x, y, z in f x, y, z. So we get f x की जगह पर x equal to m a upon m plus n plus p, y equal to n a upon m plus n plus p, और z equal to p a upon m plus n plus p. So m a upon m plus n plus p और n a upon m plus n plus p और z p a upon m plus n plus p इक्वल टू, अब x की पावर m a अपॉन m प्लस n प्लस p की पावर m इंटू n a अपॉन m प्लस n प्लस p की पावर n इंटू p a अपॉन m plus n plus p की पावर p. Now solving this, so this implies as now this becomes to value m की पावर m, यहां से n की पावर n, यहां से p की पावर p. अब a की पावर m और a की पावर n और a की पावर p,
तो a की पावर m प्लस n प्लस b बाई एक्सपोनेंट रूल. हियर m प्लस n प्लस p की पावर हियर m प्लस यहां से n प्लस p. So this is the answer for maximum value of fx y z under the condition of x plus y plus z. So now next question. Example number 2. Find the extreme value of x square y square plus z square subject to the condition ax plus by plus cz equal to p. तो इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करने के लिए लैग्रेंजेस मेथड ही अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, एक्सट्रीम वैल्यू, और अंडर द कंडीशन ऑफ दिस, मतलब ये फंक्शन इससे कनेक्टेड है. तो जब कनेक्टेड होता है तो हम लैग्रेंजेस मेथड का इस्तेमाल करते हैं. तो लेट एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. दिस इज फर्स्ट. नाउ phi x y z equal to ax plus by plus cz minus p equal to 0. This is second. To use the Lagrange's method, we find out its auxiliary function. So this function is let fxyz equal to f xyz plus lambda phi xyz. This is third, or this is the lambda is the here multipliers. So now this becomes to fxyz from this x square plus y square plus z square plus lambda phi xyz ax plus by plus cz minus p. This is third. For stationary value, we have क्या होती है कंडीशन, डेल एफ ओवर डेल एक्स इक्वल टू 0, डेल एफ ओवर डेल वाई इक्वल टू 0 एंड डेल एफ ओवर डेल जेड इक्वल टू 0. मतलब इसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रेस्पेक्ट टू वाई एंड विद रेस्पेक्ट टू जेड. जब हम x के रिस्पेक्ट करेंगे y z कांस्टेंट काम करेंगे, और y के रिस्पेक्ट करेंगे तो x और z एज ए कांस्टेंट करेंगे, और z के रिस्पेक्ट करेंगे तो x और y एज ए कांस्टेंट रहेंगे. सो दिस बिकम्स टू डेल f ओवर डेल x होगा आपका डेल f ओवर डेल x प्लस लैम्डा डेल फाई ओवर डेल x इक्वल टू 0, डेल f ओवर डेल y प्लस लैम्डा डेल फाई ओवर डेल y इक्वल टू 0 and del f over del z plus lambda del phi over del z equal to 0. अब ये वैल्यू हम इससे निकाल लेंगे थर्ड से. So this becomes to del f over del x. अब del f over del x 2x ये एज ए कांस्टेंट है 2x प्लस अब लैम्डा यहां से लैम्डा a इक्वल टू 0, 2y प्लस लैम्डा b इक्वल टू 0, 2z प्लस लैम्डा c इक्वल टू 0. सो दिस इज ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ. Multiplying fourth by a, fifth by b and sixth by c, then
एडिंग वी गेट, अब हमें क्या फाइंड आउट होता है, कि जब हमने इसको a से मल्टीप्लाई किया फोर्थ को, तो ये हो जाएगा 2xa पहला टर्म। इसको b से करेंगे तो प्लस 2/b, इसको c से करेंगे 2cz प्लस, यहां से लैम्डा कॉमन रहेगा सम में, और ये a स्क्वायर होगा, ये प्लस b स्क्वायर होगा, ये c स्क्वायर होगा, इक्वल टू 0। So this becomes to 2ax plus by plus cz plus lambda a square plus b square plus c square equal to 0. Now this becomes to, ये आपकी वैल्यू है ax plus by plus cz equal to p, तो ये 2p plus lambda a square plus b square plus c square equal to 0. So this becomes to lambda a square plus b square plus c square equal to minus 2p, और lambda equal to minus 2p upon a square plus b square plus c square. अब putting lambda equal to minus 2p upon a square plus b square plus c square in 4th, 5th and 6th, इन तीनों इक्वेशंस में हमने लैम्डा की वैल्यू पुट की, तो वी गेट, हमने इसमें किया तो 2x और ये हो गया माइनस 2pa अपॉन 2pa अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 0, और दिस बिकम्स टू x इक्वल टू pa अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। Similarly, सिमेट्री है तो y इक्वल टू pb अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और z इक्वल टू pc अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। Now putting the value of x, y, z for extreme value, putting the value of x, y, z in f x, y, z equal to x square y square plus z square. So this implies as f p a upon a square b square plus c square, pb upon a square b square plus c square, pc upon a square b square plus c square becomes to, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी, हमने a की जगह पुट किया तो ये होगा p स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस p स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस p स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का होल स्क्वायर। So this becomes to p square in whole common upon, और ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सब में का होल स्क्वायर, तो हियर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और ये से कैंसिल, तो ये p स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। दिस इज द एक्सट्रीम वैल्यू for this question. One more question in this lecture. Find example third. Find points on the surface
जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1 whose distances from the origin is minimum. अब यहां पर आपको फाइंड द पॉइंट्स ऑन द सरफेस, इस सरफेस पर whose distance from the origin is minimum. तो उसकी ऑरिजिन से जो डिस्टेंस है वो मिनिमम है, उसके पॉइंट्स हमें फाइंड आउट करने हैं. तो हियर ऑरिजिन से डिस्टेंस इस सरफेस पर पी एक्स वाई जेड कोई पॉइंट होगा. तो मान लीजिए कि ऑरिजिन आपका ये है 0 0 और ये आपके पी पॉइंट्स हैं इस सरफेस पर एक्स वाई जेड. अब ये यहां से डिस्टेंस है तो क्या होगी, लेट ओ इज 0 0 एंड पी बी एनी पॉइंट, पी एक्स वाई जेड बी एनी पॉइंट ऑन द सरफेस जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1. इस पर तो ओपी डिस्टेंस ओपी इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स माइनस 0 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. सो लेट, अब ये मिनिमम हमें फाइंड आउट करनी है, तो एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. दिस इज 1. नाउ phi x y z equal to z square minus xy minus 1 equal to 0. This is second. Now, so we constitutes auxiliary function x y z equal to f x y z plus lambda phi x y z. So this becomes to square root x square plus y square plus z square plus lambda z square minus xy minus 1. This is third. For stationary value del f over del x equal to 0, del f over del y equal to 0 and del f over del z equal to 0. So this becomes to del f over del x plus lambda del phi over del x equal to 0, del f over del y plus lambda del phi over del y equal to 0 and del f over del z plus lambda del phi over del z equal to 0. ये आपके इक्वेशंस होंगे फॉर स्टेशनरी वैल्यू के लिए. अब इनसे हम पॉइंट्स निकालते हैं. सो दिस बिकम्स टू, अब इस इक्वेशन को निकालते हैं तो डेल एफ ओवर डेल एक्स, इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1/2 इंटू 2x प्लस, अब जब हम डेल फाई ओवर डेल एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस और x का 1 तो y, तो ये हो जाएगा -y लैम्डा y इक्वल टू 0. अब ये सिमिलरली इसका सेकंड का इक्वेशन आएगा, इसका डेल एफ ओवर डेल वाई, तो 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1/2 इंटू 2y माइनस, अब z का इसमें 0 हो गया और y के रिस्पेक्ट करें तो यहाँ आएगा माइनस लैम्डा x इक्वल टू 0. और थर्ड होगा आपका डेल एफ ओवर डेल जेड, तो 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1/2
और 2z माइनस, अब ये इसका हो गया 2z लैम्डा इक्वल टू 0. On simplifying this, these three equations, so this implies as ये 2 से 2 कैंसिल, तो x अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस लैम्डा वाई इक्वल टू 0. यहां पर आपका y अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस लैम्डा x इक्वल टू 0, और ये 2 से 2 कैंसिल, और z अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2 z lambda equal to 0. So if हम स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को हम d से रिप्रेजेंट कर दें, तो दीज इक्वेशंस बिकम्स टू x अपॉन डी माइनस लेमडा वाई इक्वल टू 0, और y अपॉन डी माइनस लेमडा x इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा z अपॉन डी माइनस 2z लैम्डा इक्वल टू 0. अगर हम इसी इक्वेशन को इससे, तो हमारी z चला जाएगा, तो ये हो गया 1 अपॉन डी माइनस 2 लैम्डा इक्वल टू 0, और इससे 2 लैम्डा इक्वल टू 1 अपॉन डी और लैम्डा इक्वल टू 1 अपॉन 2d. अब लैम्डा इक्वल टू 1 अपॉन 2d हम इसमें पुट करें इन दोनों इक्वेशंस में, सो यूजिंग, तो x अपॉन डी इसमें हम यूज कर रहे हैं, तो x अपॉन डी और माइनस लैम्डा की वैल्यू 1 अपॉन 2d वाई, सॉरी ये यहां पर प्लस है, इस जगह पर प्लस है क्योंकि वहां पर प्लस है, सॉरी इस जगह पर, तो ये प्लस कर लीजिए, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये 1 अपॉन डी प्लस, तो ये माइनस आएगा माइनस 2d, तो ये प्लस 2d इक्वल टू 0. तो दिस इंप्लाइज एज 2x प्लस वाई इक्वल टू 0, और इसमें जब हम यूज कर रहे हैं इसको, तो ये y अपॉन डी माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 2d x इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी 2y प्लस x इक्वल टू 0. अब ये दो इक्वेशन हमारे पास आई, इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करते हैं, तो 2x और x 3x और ये हो गया आपका 2y और y प्लस 3y इक्वल टू 0. सो दिस इम्प्लाइज एज 3x, तो 3 कॉमन, x प्लस y इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज एज x इक्वल टू माइनस वाई. तो जब x इक्वल टू माइनस वाई हम यहां पुट करेंगे, तो हमारा इन से आएगा x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0. ये पॉइंट्स आ गए वैल्यू x की. अब x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 हमारी वैल्यू फाइंड आउट हुई, और हमारा रिलेशन है z स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई, सरफेस है आपकी z स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1. अब इसमें हम x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 पुट करते हैं,
तो x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 पुट किया तो जेड स्क्वायर इक्वल टू ये 0 प्लस 1 इक्वल टू जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 और जेड इक्वल टू प्लस माइनस 1। 10 पॉइंट्स आर अब हमारे वो जो पॉइंट्स हमसे पूछे जो मिनिमम डिस्टेंस हो वो होंगे कि 0 0 x इक्वल टू 0 एक प्लस 1 और दूसरा होगा 0 0 माइनस 1। तो ये पॉइंट्स हुए, ये इसका सॉल्यूशन है। आपको अब कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस के लिए आपको दे रहे हैं यहाँ पर, तो 2 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के लिए लिख लें जिनकी आप प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन तो 1 क्वेश्चन, मैक्सिमाइज द वॉल्यूम of the box of length x, width y and height z subject to the condition that x plus y plus 2z equal to 108। तो वॉल्यूम बॉक्स का होगा v इक्वल टू एक्स वाई जेड, तो वो आपका फंक्शन हो गया और इससे कंडीशन से वो रिलेटेड है, उसका वॉल्यूम लैग्रेंज मेथड से आप फाइंड आउट कर देंगे। सेकंड प्रैक्टिस क्वेश्चन, सेकंड है आपका डिटरमाइन any local maxima or local minima of the function w equal to x square plus y square plus z square subject to the condition that x plus y plus z 3z equal to 1। ये आपका लोकल मैक्सिमम मिनिमा के लिए ये, तो इसमें भी आपका w इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड दे रखा है, w प्लस और ये फाई हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 3z माइनस 1, तो w प्लस लैम्डा फाई इक्वल टू कैपिटल F वो फंक्शन और उसकी स्टेशनरी पॉइंट्स स्टेशनरी वैल्यू निकाल करके उसके पॉइंट पर ये वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।